नमस्कार, स्वागत है आपका अपडेट एट 12 मैं हूं आपके साथ गीतांजलि राघव। सबसे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री मोदी गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर। केवड़िया के एकता नगर में 1140 करोड़ रुपए से अधिक के बुनियादी ढांचा विकास परियोजना का करेंगे उद्घाटन शिलान्यास। सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर आयोजित राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह में होंगे शामिल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को करेंगे पुष्पांजलि अर्पित। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच मुलाकात। दक्षिण कोरिया के बुसान में हुई मुलाकात। 6 साल बाद ट्रंप और शी जिनपिंग की हुई मुलाकात। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने रामनाथपुरम जिले के पसुमपोन में स्वतंत्रता सेनानी और राष्ट्रीय नेता पसुमपोन मथुराम मिल्लिंगा थेवर को उनकी 118वीं जयंती पर की पुष्पांजलि अर्पित। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने यूरोपीय संसद की अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मामलों की समिति के एक संसदीय प्रतिनिधिमंडल से की मुलाकात। बोले, भारत और यूरोपीय संघ 2 सबसे बड़े और जीवंत लोकतंत्र। लोकसभा सदस्य डॉक्टर डी पुरंदेश्वर के नेतृत्व में एक 13 सदस्यीय भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल संयुक्त राष्ट्र में हैं और संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA की भूमिका की सराहना। सांसद डॉक्टर डी पुरंदेश्वरी ने कहा कि IAEA देशों को परमाणु विज्ञान और तकनीक के सुरक्षित व शांतिपूर्ण उपयोग में कर रहा है मदद। भारत ने एजेंसी की प्रमुख पहलों रेज ऑफ होप, जोडियाक और न्यूटेक प्लास्टिक का स्वागत किया, जो कैंसर महामारी, प्लास्टिक प्रदूषण जैसी वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए शुरू की जाएगी। और अब खबरें विस्तार से। लोकसभा सदस्य डॉक्टर डी पुरंदेश्वर के नेतृत्व में एक 13 सदस्यीय भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल संयुक्त राष्ट्र में है। इस दौरान डॉक्टर डी पुरंदेश्वर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के पूर्ण सत्र में भारत की ओर से वक्तव्य दिया। उन्होंने परमाणु विज्ञान के प्रौद्योगिकी के शांतिपूर्ण, सुरक्षित और संरक्षित अनुप्रयोगों को सुगम बनाने में एजेंसी की महत्वपूर्ण भूमिका के लिए भारत के प्रबल समर्थन पर भी जोर दिया। Values the essential role of IAEA in assisting countries to build human institutional capacities, including regulatory capabilities for the safe, secure, and peaceful applications of nuclear science and technology. The role of nuclear science and technology has been crucial in the implementation of national development strategies and recovering from the COVID pandemic, while ensuring the implementation of the 2030 agenda and in the achievement of climate goals in the context of the 2015 Paris Agreement. IAEA's activities in the field of technical cooperation and nuclear applications contribute in an important way to meeting energy needs, improving human and animal health, developing agriculture, managing the use of water resources, optimizing industrial processes, thus helping to improve the quality of life and well-being of people across the world. India welcomes the agency's flagship initiatives cutting across different areas of nuclear science and technology, such as Rays of Hope for cancer control, Zodiac for strengthening capacities to respond to zoonotic disease outbreaks, and New Tech Plastics for addressing plastic marine pollution. We also support and appreciate the support extended by IAEA to member states in response to natural disasters, outbreaks, as well as emergency situations. Tata Memorial Center has initiated indigenous chimeric antigen receptor or CAR T-cell therapy in India, which brought down the cost of cancer treatment from $500,000 to $30,000. The National Cancer Grid or NCG is now a 310-member network across the country, which treats approximately 60% of the country's total cancer load in an cost-effective manner.
India has also contributed to the agency's technical cooperation programs by seconding experts, offering training in our reputed institutions for experts from other member states. We have also supported the R&D of IAEA in participating and hosting technical meetings and coordinated research projects. We will continue to provide this support to the agency's programs. सांसद जी.के. वासन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1540 समिति की एक खुली ब्रीफिंग में भारत का वक्तव्य प्रस्तुत किया। उन्होंने सामूहिक विनाश के हथियारों के प्रसार को रोकने के वैश्विक प्रयासों के प्रति भारत की अटूट प्रतिबद्धता को बताया। We congratulate Panama on assuming the chair of the 1540 committee and assure our full support. India looks forward to working closely with Panama in advancing the committee's mandate. We appreciate your leadership in convening the 1540 committee's open briefing for member states and international, regional and sub-regional organizations. It is important that the committee hears the views and comments of the member states who bear the primary responsibility for the implementation of UNSC Resolution 1540. Let me begin by reaffirming India's unwavering commitment to global efforts to prevent the proliferation of weapons of mass destruction and their delivery systems. The access to these WMD by terrorists and other non-state actors adds a serious dimension to threats posed by these weapons to international peace and security. Cognizant of this threat, India has been tabling an annual resolution in the UN General Assembly on measures to prevent terrorists from acquiring weapons of mass destruction, which is adopted by consensus. India accords great importance to the implementation of UNSC Resolution 1540. With our long-standing commitment to global non-proliferation, India has a robust legal and regulatory system to implement the provisions of Resolution 1540 and strategic trade controls. This includes our effective and interministerial mechanism at national level on licensing, enforcement and risk assessment, outreach and capacity building in this area, recognizing the role of the industry, academia and other key stakeholders in facilitating the implementation by states of Resolution 1540 and STC. India continues to organize outreach events involving the stakeholders at the national, regional, social, sectoral level. In this regard, it may be noted that 2024, the Government of India, in partnership with various industry bodies and other stakeholders, had been organizing the National Conference on Strategic Trade Controls, which has been restructured from early editions into a unique format. This annual NCSTC focuses on India's strategic trade control system and international best practices, comprising wider participation of the government agencies concerned, industry and stakeholders across relevant sectors who have been sharing their expertise and experiences on industry capacities, developments and compliances. International speakers that has previously included the participation of the UNSC 1540 committee chairs and heads, chairs of multilateral export control regimes, among others, and foreign delegates, participants from various countries. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की आज दक्षिण कोरिया में मुलाकात हुई, जिसके बाद ट्रंप चीन पर मेहरबान दिखे। उन्होंने इस मुलाकात के बाद ही चीन पर 10% टैरिफ कम कर दिया। बता दें कि दक्षिण कोरिया के बुसावा में दोनों की मुलाकात 6 साल बाद हुई है। शी जिनपिंग से मुलाकात के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमारी मुलाकात बहुत ही सफल रही है। ट्रंप ने चीनी राष्ट्रपति को एक कठोर वार्ताकार के साथ ही एक महान देश का महान नेता भी कहा।
उन्होंने कहा कि हम एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं। हमारे बीच हमेशा से बहुत अच्छे संबंध रहे हैं। We have a fantastic relationship for a long period of time, and it's an honor to have you with us. Thank you very much. President Trump, it is a great pleasure for me as well to meet you. And it feels very warm seeing you again because it's been many years. Since your re-election, we have spoken on the phone 3 times, exchanged several letters, and stayed in close contact. And our joint guidance, China's relations have remained stable on the whole. Given our different national conditions, we do not always see eye to eye with each other. And it is normal for the 2 leading economies of the world to have frictions now and then. And in the face of winds, waves, and challenges, you and I, at the helm of China-US relations, should stay the right course and ensure the steady sailing forward of the giant ship of China-US relations. I always believe that China's development goes hand in hand with your vision to make America great again. Our 2 countries are fully able to help each other succeed and prosper together. Over the years, I have stated in public many times that China and the United States should be partners and friends. This is what history has taught us and what reality demands. A few days ago, in the latest round of consultation, our 2 economic and trade teams reached basic consensus on addressing our respective major concerns and made encouraging progress. This provided the necessary conditions for our meeting today. Mr. President, I am ready to continue working with you to build a solid foundation for China-US relations and create a sound atmosphere for the development of both countries. Mr. President, you care a lot about world peace, and you are very enthusiastic about settling various regional hotspot issues. I appreciate your great contribution to the recent conclusion of the Gaza ceasefire agreement. During your visit to Malaysia, you witnessed the signing of the Joint Declaration on Peace along the Cambodia-Thailand border, to which you had provided input. China has been helping in our own way Cambodia and Thailand properly settle their border disputes, and we have also been promoting peace talks to resolve other hotspot issues. The world today is confronted with many tough problems. China and the US can jointly shoulder our responsibility as major countries and work together to accomplish more great and concrete things for the good of our 2 countries and the whole world. I look forward to exchanging views with you on questions important for our 2 countries and the world. प्रधानमंत्री मोदी आज से 2 दिनों के लिए गुजरात दौरे पर हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री केवड़िया के एकता नगर में 1140 करोड़ रुपए से अधिक की बुनियादी ढांचा विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं से भारत सरकार के विजन इको टूरिज्म, हरित परिवहन, स्मार्ट अवसंरचना और आदिवासी विकास को बल मिलेगा। ये सभी काम स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के आसपास के क्षेत्रों में किए जा रहे हैं। शुक्रवार को प्रधानमंत्री स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर सरदार पटेल को पुष्पांजलि अर्पित करेंगे और राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह में भाग लेंगे। इस अवसर पर वे आरंभ 7.0 कार्यक्रम के तहत 100वें कॉमन फाउंडेशन कोर्स के अधिकारी प्रशिक्षुओं से बातचीत करेंगे। सरदार पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री 150 रुपए का विशेष स्मारक सिक्का और एक डाक टिकट भी जारी करेंगे। राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री एकता की शपथ दिलाएंगे और परेड का निरीक्षण करेंगे। इस परेड में सीमा सुरक्षा बल, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, सशस्त्र सीमा बल और विभिन्न राज्य पुलिस बलों की टुकड़ियां शामिल होंगी।
परेड के मुख्य आकर्षणों में से भारतीय नस्ल के कुत्तों वाली बीएसएफ की टुकड़ी, गुजरात पुलिस की घुड़सवार टुकड़ी, असम पुलिस का मोटरसाइकिल डेयरडेविल शो, बीएसएफ की ऊंट सवार टुकड़ी और ऊंट बैंड शामिल होंगे। इस अवसर पर सीआरपीएफ के 5 शौर्य चक्र विजेता और बीएसएफ के 16 बहादुर जवानों को सम्मानित किया जाएगा, जिन्होंने झारखंड में नक्सल विरोधी और जम्मू कश्मीर में आतंकवाद रोधी अभियानों में असाधारण साहस दिखाया। इसके साथ ही ऑपरेशन सिंदूर के दौरान वीरता प्रदर्शित करने वाले बीएसएफ जवानों को भी सम्मान मिलेगा। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री का यह दौरा एकता, विकास और सरदार पटेल की विरासत को सम्मान देने पर केंद्रित है। सापुतारा और विंध्याचल की पर्वतमालाओं के बीच में एकता नगर स्थित है। वहीं पर कल सुबह प्रधानमंत्री जी 7:55 को परेड की सलामी लेंगे। ये राष्ट्रीय परेड में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, कई राज्यों के पुलिस बल कौशल, अनुशासन और वीरता का प्रदर्शन करेंगे। इस वर्ष परेड के अंदर सीआरपीएफ के 5 शौर्य चक्र विजेता और बीएसएफ के 16 वीरता पदक विजेता भी शामिल होंगे। परेड का नेतृत्व महिला पुलिस अधिकारियों द्वारा किया जाएगा और परेड में ढेर सारे सांस्कृतिक प्रदर्शन भी करने का आयोजन हुआ है। हर राज्य की पुलिस से, हर सीएपीएफ के जवान अपना सांस्कृतिक कौशल का भी परिचय कराएंगे। बीएसएफ का ऊंट दल और ऊंट सवार बैंड भी इसके अंदर शामिल होगा। गुजरात का घुड़सवार दस्ता शामिल होगा। आसाम पुलिस का मोटरसाइकिल डेयरडेविल शो भी इसके अंदर होगा और कश्मीर और पंजाब की पुलिस भी इसके अंदर हिस्सेदारी करेगी। एनएसजी, एनडीआरएफ, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और पांडिचेरी भी अपनी अपनी झांकियां रखेंगे। जम्मू और कश्मीर पुलिस भी अपनी अपनी झांकी रखेगी। वायुसेना की सूर्य किरण टीम, उनका भव्य एयर शो इस परेड का शिखर बिंदु होने वाला है। 900 से ज्यादा कलाकार देश भर से आकर हमारे देश की सांस्कृतिक विरासत को देश और दुनिया के सामने रखेंगे और एक प्रकार से ये परेड सच अर्थ में भारत की एकता का परेड बनकर रहेगा। एक भारत श्रेष्ठ भारत के कंसेप्ट को जमीन पर उतारने का काम करेगा और सरदार साहब की 150वीं जयंती के बाद अब हर 31 अक्टूबर को 26 जनवरी की तर्ज पर ही ये परेड नियमित रूप से मनाया जाएगा और हमेशा के लिए देश के युवाओं को सरदार साहब के सिद्धांतों को और सरदार साहब के देश के लिए किए हुए कामों को जानकारी देने का ये माध्यम बनेगा। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज स्वतंत्रता सेनानी और राष्ट्रीय नेता पसुपोन मथुरामिलिंगा थेवर को पुष्पांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने पसुपोन में आयोजित पसुपोन थिरु मथुरामिलिंगा थेवर की 118वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने उपराष्ट्रपति के एक्स हैंडल से जानकारी देते हुए कहा, थेवर ने अपना जीवन राष्ट्र के लिए समर्पित कर दिया था। उपराष्ट्रपति ने थेवर को नेताजी सुभाष चंद्र बोस का एक समर्पित अनुयायी बताया। उपराष्ट्रपति ने थेवर के राष्ट्रवाद और आध्यात्म को 2 आंखों के सिद्धांत पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि थेवर सभी समुदायों और धर्मों के नेता थे, जिन्होंने दूसरों के कल्याण के लिए अपनी जमीन भी दान कर दी। थेवर ने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और जेल भी गए। उन्होंने जोर देकर कहा कि साहस, त्याग और न्याय से परिपूर्ण उनका जीवन पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। गौरतलब है कि पसुपोन थिरुमथुरामिलिंगन थेवर भारतीय राजनीतिज्ञ और स्वतंत्रता सेनानी थे, जिनका जन्म 30 अक्टूबर 1908 को तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले के पसुपोन गांव में हुआ था। वे तमिलनाडु में अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता थे और उन्होंने 1939 में मंदिर प्रवेश आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे समाज के वंचित वर्गों को मंदिरों में प्रवेश की अनुमति मिली।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल सुबह हरियाणा के अंबाला एयरफोर्स स्टेशन से राफेल फाइटर जेट में उड़ान भरकर इतिहास रच दिया। राष्ट्रपति ने इस यात्रा को अविस्मरणीय बताया और अपने अनुभव साझा किए। प्रिय देशवासियों, नमस्कार। राफेल की ये उड़ान मेरे लिए एक अविस्मरणीय अनुभव है। इस आधुनिक विमान से आज मैं इस प्राचीन भूमि और ब्रह्मोस सरोवर को देख रही हूँ, जो हमारी सांस्कृतिक विविधता और ऐतिहासिक यात्रा का प्रतीक है। हमारी सैन्य क्षमता पर मेरा विश्वास और अधिक दृढ़ हो रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में 12वें आसियान और सहभागी देशों के रक्षा मंत्रियों के सम्मेलन ADMN+ में हिस्सा लेंगे। आसियान और सहभागी देशों के रक्षा मंत्रियों का यह सम्मेलन हर वर्ष आयोजित किया जाता है। इसका उद्देश्य आसियान और 8 सहभागी देशों के बीच रक्षा सहयोग मजबूत करना है। ADMN+ के अंतर्गत भारत मलेशिया के साथ वर्ष 2024-27 की अवधि के लिए आतंकवाद से निपटने पर विशेषज्ञों के कार्य समूह का सह अध्यक्ष है। इस दौरान शुक्रवार को मलेशिया की अध्यक्षता में आसियान भारत रक्षा मंत्रियों की अनौपचारिक बैठक होगी। इसमें आसियान के सभी सदस्य देशों के रक्षा मंत्री भाग लेंगे। इसका उद्देश्य आसियान के सदस्यीय देशों और भारत के बीच रक्षा और सुरक्षा सहयोग को मजबूत करना है। साथ ही एक्ट ईस्ट नीति को आगे बढ़ाना है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस सम्मेलन के 15 वर्ष पूरे होने और आगे की राह के बारे में आयोजित सत्र को भी संबोधित करेंगे। 2 दिन की यात्रा के दौरान राजनाथ सिंह आसियान के सदस्य और सहभागी देशों के रक्षा मंत्रियों और मलेशिया के शीर्ष नेतृत्व के साथ द्विपक्षीय बैठकें कर सकते हैं। यूरोपीय संसद की अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मामलों की समिति के एक संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने संसद में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व क्रिस्टीना मैस्ट्रे कर रही हैं। बैठक के दौरान राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने कहा कि भारत और यूरोपीय संघ 2 सबसे बड़े और सबसे जीवंत लोकतंत्र हैं। खुले बाजार वाली अर्थव्यवस्थाएं और बहुसामुदायिक समाज हैं। उन्होंने कहा कि भारत और यूरोपीय संघ संबंध निरंतर बढ़ रहा है। दोनों पक्षों ने उम्मीद जताई कि भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार बाजार समझौता जल्द ही पूरा हो जाएगा। यूरोपीय संघ के संयुक्त संचार की सराहना करते हुए उपसभापति ने विशेष रूप से व्यापार, प्रौद्योगिकी, सुरक्षा, रक्षा, नवाचार, जलवायु, संपर्क, गतिशीलता और वैश्विक शासन के क्षेत्रों में साझेदारी को आगे बढ़ाने की बात कही। संसदीय आदान प्रदान में अच्छी गति पर संतोष जताते हुए पहलगांव में हुए बर्बर आतंकवादी हमले के बाद जून 2025 में सर्वदलीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल की ब्रुसेल्स यात्रा को याद किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस प्रकार की नियमित संसदीय आदान प्रदान भारत यूरोपीय संघ साझेदारी की मजबूती का प्रतीक है। भारत और यूरोपीय संघ के बीच प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते को जल्द पूरा करने से बड़े बदलाव संभव हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बुधवार को कहा कि बदलाव वैश्विक अर्थव्यवस्था को स्थिर करने और लोकतांत्रिक ताकतों को मजबूत करने के
नजरिए से सफल हो सकते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 27 देशों के यूरोपीय संघ के एक उच्च स्तरीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की और इस मुलाकात के बाद कहा, 7 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल दोनों पक्षों के बीच लंबे समय से प्रतीक्षित द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के लिए भारत आया। विदेश मंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में बैठक की तस्वीरें साझा कर कहा, दिल्ली में यूरोपीय संसद की अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समिति के प्रतिनिधिमंडल से मिलकर प्रसन्नता हुई। उन्होंने बैठक के बारे में बताते हुए लिखा, इस बात पर चर्चा हुई कि भारत और यूरोपीय संघ कैसे तालमेल को अधिकतम कर सकते हैं और सहयोग को मजबूत कर सकते हैं। इससे वैश्विक अर्थव्यवस्था स्थिर हो सकती है और लोकतांत्रिक ताकतें मजबूत। साथ ही भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते को जल्द पूरा कर इन उद्देश्यों से बड़ा बदलाव लाने की दिशा में कदम उठाए जाने चाहिए। दिल्ली में भारतीय वायुसेना बैंड और जर्मन सशस्त्र बलों के माउंटबेटन बैंड के कर्तव्य पथ पर संयुक्त प्रदर्शन किया। आइए देखते हैं इसकी कुछ झलकियां। अपडेट एट 12 में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।